let's start the table of elements in that boron group element compounds. The structure of the tetraborane, if you see the structure, you will find that there are the four hydrogen atoms which are at the terminal positions. Means these four hydrogen atoms, two hydrogen atoms at the boron atoms, again two hydrogen atom boron atom. These are the terminal one, and again two hydrogen atoms singly boron attached to the boron atoms, and then the four hydrogen atoms are at the bridge centers and act as the bridging hydrogen atoms. So in case of the terminal hydrogen atoms, which are the six in numbers, total six in numbers, these boron atoms act as the two center, two electron bond, two electron, two center bond. But in case of the means these six are act as the two electron, two center bond, six hydrogen atoms. Which are they? One, two, three, four, five, six. These six hydrogen atoms are terminals and which having the two electron, two center bond formation. Then remaining are the four hydrogen atoms. These four hydrogen atoms are the, can anyone say which how much electron and how much center are there for the bridging hydrogen atoms? Four bridge hydrogens are there. Yes. And how much electron involved and how much centers are there in the bridge atom is in case of the terminals two electron tin center, and in case of the how much electron how much center are there? Two center. Two center are there, but not two center. Actually in case of the bridge atom there are three centers. Okay, how there are three center I will show you. In case of the bridge atoms, three centers are like this: one, two, three. Three involved for the formation of the bridge. For the formation of the bridge hydrogen atoms, three atom involves means three centers are there, and in the same way in all the directions. If we consider another atoms, there is also one atoms, two, three. It is also bridge types. If we see this one, two, three, means three center are involved for the bridging. In case of this one, two, three, means for the formation of bridge of the hydrogen atoms, three centers are involved. But if we see the electrons, then we can draw that boron having the one unpaired electron, hydrogen having the one unpaired electrons, and boron also having the one unpaired electrons. Okay, sorry.
one boron having the one unpaired electrons, one hydrogen atoms, and these borons not having the any electrons for the hydrogen atoms for the formation of the bridge hydrogen atoms. So in this case we find that there are the three atoms involved in the bridge formations, but only two electrons are involved. Why these atoms? Why this boron atom cannot participate the electrons? Because it's have the limitations. How it have the limitations? Because these boron atoms having the three unpaired electron which are involved in the bonding with these atoms and with these atoms. So these three valence electron involved in the formation of three hydrogens, borons, and hydrogen bonds means these boron atoms have having the any unpaired electrons. Because of this, boron having zero electrons, particularly these boron atoms having zero electrons means the electron involved from the this boron atom and hydrogen only. Means there is a formation of a bridge, but this bridge involve only two electrons. Means the three centers are there, two electrons are there in case of the formation of the bridge boron hydrogen boron bonds. So this is the structure representations is there. Six terminals, two electron center boron hydrogen bonds, two electron, two centers, and the total number of electron 12. Okay, this calculation we have done in earlier. Total number of electrons are 22, and the shape of the structures of is the looking like the banana, so it is called as banana shape. Next is the again representations of these structures. Next is the question is there, explain the formation of p pi Bog bonding F3. p pi back bonding in BF3. What is meant by the p pi back bonding? Pi bond formations, lateral overlap, so pi bond is formation takes place. If you see the, you will understand the p pi back bonding. Firstly, understand the bonding here. So this bonding is here. One bond here, third bond. These are the three bonds already there. These three bonds are the sigma bonds. These three bonds are the sigma bonds. Anyone having the doubt regarding these sigma bonds? सबको मालूम है ना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं तीन, जैसा कि देखिए ये बोरॉन एटम है, तो एक फ्लोरीन एटम तैयार करेगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा फ्लोरीन एटम तैयार करेगा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा फ्लोरीन एटम तैयार करेगा सिग्मा बॉन्ड। कि तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द 3 बॉन्ड फॉर्मेशंस। अब ये तो हो गया बोरॉन की प्रॉपर्टी जो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन हमको ये मालूम है कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि तो उसका जो एक ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल वो वैकेंट है, ये हमने देखा है। इसका ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, दैट्स व्हाई we called it as the electron deficient species or we called it as a Lewis acid। इसी वजह से हमने उसको लेविस एसिड बोला है। अब वो ये लेगा, लेने के लिए तैयार है बोरॉन एटम, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे कि सराउंडिंग में उसके आजू बाजू में बोरॉन के बाजू में जो आइटम्स अटैच है जो कि फ्लोरीन है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पता है कि फ्लोरीन होता है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, देखिए उसके पास एस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, और उस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भी हाइड्रोजन आइटम है, अभी फ्लोरीन आइटम है तो फ्लोरीन आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कुछ भी फ्लोरीन है तो 2 आएगा, 2p 2s2 2p6, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आती है, अभी आती है आवाज। यस। हाँ, तो देखिए पेड़ किस तरह से तैयार है, पेड़। तो अभी यस की एक पेड़ तैयार है, पी के पास कितने पेयर है, ये पी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से तैयार होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यस के, ये 2 और ये 5 इलेक्ट्रॉन पी के। तो हमको क्या दिखता है यहाँ पर, हमको दिखता है कि यहाँ पर जो है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है पी के पास, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया बोरॉन के साथ, यानी वो भी पेयर्ड हो गया। अब बचे जो है इलेक्ट्रॉन, वो सब के सब पेयर के फॉर्म में है। कितने पेयर बन गए, ये एक पेयर, ये 2, ये 3 पेयर। तो फ्लोरीन एटम के पास अब बचे 3 पेयर्स। फ्लोरीन एटम के पास कितने पेयर बच गए, अब 3 पेयर बच गए। तो अब ये 3 पेयर जो है बचे हुए, ये पेयर कहाँ पे दिखेंगे आपको, देखिए इतना तो समझ में आया आपके कि फ्लोरीन एटम के पास 3 पेयर है। यस सर। हाँ, यस सर। अब ओके, तो ये जो 3 पेयर है तो ये कहाँ दिखेंगे आपको, आप अगर जो फ्लोरीन एटम को देखेंगे यहाँ पर ये एक पेयर, ये दूसरी, ये तीसरी पेयर, इस फॉर्म में आपको दिखेंगे। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो उसने तो बॉन्ड तैयार कर दिया ये इसके साथ। तो फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और 3 जो है इन द फॉर्म ऑफ पेयर है। अब ये पेयर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, वो किसी को अगर जो इलेक्ट्रॉन लगता है तो डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन डोनेशन जो होता है वो कंप्लीट डोनेशन नहीं होता है। वो क्या होता है, वो डोनेशन से जो बॉन्ड तैयार होता है वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड तो तैयार होता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट यानी वन साइड इलेक्ट्रॉन डोनेशन से बॉन्ड तैयार होता है। तो यप के पास भी है ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, बोरॉन के पास भी है पी ऑर्बिटल, बोरॉन के पी ऑर्बिटल वैकेंट है, एफ के पी ऑर्बिटल फुल्ली ऑक्युपाइड है, तो वो अपने पास के इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड तैयार होगा, जैसा इसने अपने इसको दिया, अपने पास के इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे डोनेशन हुआ है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग तैयार हुई है फ्लोरीन की बोरॉन के साथ। बॉन्डिंग तैयार होने के बाद फिर से बॉन्डिंग हुई है, दैट इज बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग किसकी तैयार हुई, किसकी वजह से, फ्लोरीन एटम की वजह से। तो इसको बोलते हैं पी पाई, पी पाई यानी पाई बॉन्ड तैयार हुआ है।
p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, तो इसको बोलते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। इसको वर्ड जो यूज करते हैं वही है p पाई बैक बॉन्डिंग, इसी वजह से ये वर्ड यूज होता है। ओके, समझ में आया आपके? नहीं आया? चलिए, हेलो, Yes, sir. है ना? हाँ, कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय पी पाई बग बॉन्डिंग इन द BF3 मॉलिक्यूल, तो इसको हमने यहाँ से समझने की कोशिश की है। तो इन द 2p ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन एटम्स, in the 2p orbital of the fluorine atom having the lone pair overlap sideways with the empty 2p orbital of the boron atoms. Empty 2p orbital of the boron atoms give rise to the additional fluorine boron fluorine coordinate bond with the boron bond form, which is the result of the p pi back bonding. So as a result of this donation, the electron deficiency of the boron atoms gets compensated and its Lewis acid character decreases. अब बोरॉन ने तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के पास बाद बोरॉन के पास तो कुछ बचा नहीं। अभी बोरॉन के पास क्या था, एक p ऑर्बिटल वैकेंट था, तो बोरॉन ने फ्लोरीन के पास से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया बैक डोनेशन की वजह से। अब वो जो पाई बॉन्ड तैयार हो गया, उसके बाद बोरॉन के पास कोई भी जगह वैकेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम बोरॉन को लेविस एसिड बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखिए सेंटेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डोनेशंस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ द बोरॉन एटम गेट्स कंपेंसेटेड एंड इट्स लेविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीजेस। यहाँ पर उसका लेविस एसिड कैरेक्टर तो था, वो डिक्रीज हो गया। तो see for the maximum in case of the fluorine due to the small size। ओके, तो अभी अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि किस में सबसे ज्यादा बैक डोनेशन होगा, कि तो फ्लोरीन की जगह आप क्लोरीन भी ले सकते, फ्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते, फ्लोरीन की जगह आप आयोडीन भी ले सकते। ओके, तो फ्लोरीन यानी BCl3 BF3 BI3 BBr3 इस तरह के बॉन्ड तैयार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डोनेशन कौन करेगा, जिसकी साइज सबसे छोटी होंगी, जो हैलोजन एटम की साइज सबसे छोटी, वो सबसे ज्यादा डोनेशन करेगा बोरॉन एटम को। यानी सबसे ज्यादा डोनेशन कौन करेगा, फिर अगर जो हमने कैटेगरी देखे तो सबसे छोटी साइज है फ्लोरीन एटम की, उससे बड़ी साइज है क्लोरीन एटम की, उससे बड़ी साइज है ब्रोमीन एटम की, उससे बड़ी साइज है आयोडीन एटम की। तो सबसे ज्यादा डोनेशन करेगा फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम करेगा क्लोरीन, उससे कम थोड़ा कम डोनेशन करेगा ब्रोमीन, और सबसे कम डोनेशन करेगा आयोडीन। तो जितना ज्यादा डोनेशन रहेगा उतना ही ज्यादा उसकी जो है लेविस एसिड कैरेक्टर बोरॉन का कम होते जाएगा। तो अगर जो हम पूछे कि ट्रेंड बताओ कि किसका लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और किसका लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे कम है, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है उस टाइम में लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे कम, और सबसे कम एक्सेप्टेंस है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उस टाइम में सबसे ज्यादा एसिड कैरेक्टर। तो उस तरह से आप जो है उसकी जो है स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं कंपेरेटिवली कंसेप्ट के बेसिस पर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ये समझ में आया ना आपके? नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ p पाई बैक बॉन्डिंग इन BF3।
सर यस। सर जितनी स्मॉल साइज होंगी उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा या कम होगा? लेविस एसिड कैरेक्टर उतना कम हो सकता है कंपैरेटिवली। के कंपैरिजन करेंगे आप उसके फैमिली के अंदर, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि फैमिली में जो है एसिडिक लेविस एसिड कैरेक्टर उतना कम रहेगा। बाकी के साथ कंपेयर नहीं कर अच्छा। सकते अब आप फैमिली फैमिली की बात चल रही है, सिर्फ हेलोजन फैमिली की। ओके। यस सर। हाँ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग इन BF3। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, कि जो एसिडिक कैरेक्टर जो करता है, ओके, कि उसके पास कितना स्पेस वैकेंट है। कि तो एसिडिक कैरेक्टर क्या बोलते हैं हम, लेविस एसिड किसको बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द BF3। अब BF3 का एप्लीकेशन क्या है, तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि एक लेविस एसिड बोलकर केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज होता है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देखी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएक्शन, या फिर आपने वो देखे होंगे, कौन सी, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देखे होंगे आपने। क्राफ्ट असाइलेशन में AlCl3 यूज होता है वहां पर, अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये जो चीजें हैं ये लेविस है, ये जो है BF3 इज ऑल्सो वन ऑफ द लेविस एसिड। तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर इसका यूज होता है। Sometime it is used as a catalyst also. It is electron deficient, hence used as the electron pair acceptor also. Form the coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करने के लिए उसका यूज वहां पर करते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन था BF3 मॉलिक्यूल का। इतना पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है। इसका रिमेनिंग जो पार्ट है, जो हम जो है